Good morning, everyone. Welcome in E-class of Social Science. Students, today we will continue chapter number 2 in history, that is New Kings and Kingdoms. So the main topics on which we will discuss today, that is the regional kingdoms of North India, Tripartite struggle, the Muslim invasion of India, Battle of Tarain, the Chola Empire of South, and Chola administration and architecture. Regional kingdoms of North India. Students, many dynasties ruled India during early medieval period in the north. The Rajputs, the Gehedwas, Goris, as you can see the names here, those are between 8th and 10th centuries के बीच की ये बात है. Number of powerful empires were dominated in the eastern and northern part of our country, and those were like Senas, Palas, the Pratiharas, the Rashtrakutas, the Rajputas, Solankis, Parmaras, Gehadwas, Chandelas, Cholas, Cheras, Pandyas. These are those important dynasties names who were very much powerful in our country in the time period between 8th to 10th century. As you can see this image, these are the image of Rajputs. Students, इस टाइम पीरियड पे राजपूत किंगडम जो था वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट था, सबसे ज्यादा पावरफुल था. तो राजपूत जो थे, ऐसा भी कहा जाता है कि राजपूत के ओरिजिन के बारे में बहुत सी बातें हुई हैं. लाइक राजपूत हाउएवर क्लेम टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ द काकतियाज of Warangal, and it is said कि they are the Kshatriyas of warrior class of Vedic times. They claim that they were Suryavanshi, and this is belonging to the Sun family, or Chandravanshi, that is belonging to the Moon family. Some Rajput clans also considered themselves to be the part of fire family, जैसे कि अग्निकुला हो गया इनको, तो ये अलग अलग वंशज इनके माने जाते थे. But they believe that they were born out of a sacrifice and fire. ऐसा भी माना जाता है कि वो जो अग्निकुल जो माने जाते हैं उनका जन्म फायर से हुआ है. तो ये राजपूत कौन कौन थे? देवर तोमर्स, चौहान, सोलंकीज, परमारास, गेहदवास, चंदेलास. These all names you can see here in this map. They were very much important and very much powerful in this time period. ट्रिपिटाई स्ट्रगल. स्टूडेंट्स, हमारी हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रगल है. दिस इज नोन एज ट्रिपिटाई स्ट्रगल विच इज द स्ट्रगल फॉर द एरिया कन्नौज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस इमेज. What is the exact location of Kannauj? Kannauj is in still is in Uttar Pradesh, and that time it was also in Uttar Pradesh. So during the 8th century AD, a struggle for controlling Kannauj took place among the major empire of India, namely those were Palas, Pratiharas and Rashtrakutas. So Kannauj was the most important. What was the reason behind it? Actually, Kannauj was the most important city in North India. Its location was such that whoever held Kannauj could control the resources like mineral, agriculture, trade. तो इन सब चीजों को क्या कर सकते थे? कंट्रोल कर सकते थे. एंड द इंटायर गंगा वैली, पूरी गंगा वैली को कंट्रोल कर सकते थे. सिंस द 8th century, Pala, Gurjara Pratihara and Rashtrakutas were engaged in tripartite struggle to control what? To control Kannauj. And this struggle lasted for over 2 centuries and weakened all three dynasties. लगभग 200 सेंचुरीज तक ये लड़ाई चलती रही, जिसकी वजह से ये तीनों डायनेस्टीज, पाला पाला जो था, इट वाज हैज बीन कवर्ड द मोस्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ बिहार, बंगाल एंड झारखंड. तो ये जो पाला डायनेस्टी थी बहुत ज्यादा मजबूत और कंट्रोल्ड डायनेस्टी थी, जिसकी वजह से बंगाल बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था. इसी तरह से गुर्जरा प्रतिहारा थी. तो ये सारी डायनेस्टीज जो थी ये बहुत ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद, क्योंकि ये 200 सेंचुरीज तक ये कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए लड़ती रही, दैट इज वाई ये बिल्कुल कमजोर हो गई. यू कैन सी देयर लोकेशंस, दैट इज द गुर्जरा प्रतिहारा का लोकेशन आप देख सकते हैं, पाला डायनेस्टी का और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का. This map is showing the exact location of Kannauj, and you can see these all three dynasties are fighting with each other
to control Kannauj. The Muslim invasions in our country. Students, in our country, there were so many Muslim invasions were held. Like at the very first, जो सबसे ज़्यादा नाम आता है, that is the Mahmud Ghazni. Students, this first image is of Mahmud Ghazni and second image is of Muhammad Ghori. These two important, ये जो दो important लोग हैं, इन लोगों ने हमारे देश में बहुत बार अटैक किया. महमूद ऑफ गजनी ने तो नियर अबाउट 17 times. He attacked on our country 17 times और एक भी बैटल ये हारा नहीं. इन स्पैन ऑफ 26 years from 1000 to 1026, Mahmud invaded India 17 times and he plundered here. His early raids were against the Hindustani rulers of Punjab. He defeated Jaipal and Anandpal and got a large tribute from them. ये करते क्या थे, बहुत ज्यादा ट्रिब्यूट्स लेके जाते थे, वेल्थ यहाँ से बहुत सारा लेके जाते थे और अफगानिस्तान में जहां पर गजनी जो कि इसका अपना एरिया था उसको ये वेल्दी बनाते थे. He raided Mathura and Kannauj in 1018 and सोमनाथ. सोमनाथ का जो अटैक था, इट वॉज द 16th अटैक. जो 16वीं बार इसने अटैक किया था सोमनाथ पे, ये बहुत ज्यादा हमारी हिस्ट्री में मायने रखता है क्योंकि यहाँ से लौटते टाइम इसका एक छोटा सा बैटल हुआ था जाटों से. जाटों ने इसको रोका था कि इसको यहाँ से वेल्थ लेकर जाने नहीं देंगे, तो दैट इज वाई वापस इसने 17वीं बार जो अटैक किया वो उसने उन जाटों पर किया उनसे बदला लेने के लिए. तो दीज वर फ्यू इंपॉर्टेंट, दीज बोथ नेम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि इनकी वजह से ही हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम डायनेस्टीज इनकी वजह से ही आई. सेकेंड इमेज इज ऑफ मोहम्मद गौरी. तो आफ्टर महमूद्स डेथ, Ghaznavis became very weak and taking advantage of this, जो मोहम्मद गौरी था, he independent once again and also annexed all Ghaznavis territories. तो पहले तो इसने महमूद गजनवी की सारे टेरिटरीज को ऑक्युपाई किया और उसके बाद इंडिया की तरफ रुख किया. So these both are very much important. They invaded India. Mahmud of Ghazni raided India for the first time in 1080. After that, he is said to have conquered of India 17 times. Mahmud of Ghazni had started his invasion in India during the period when the Rajput power had declined, and Muhammad Ghori invaded India in 1175 AD after the conquest of Multan and Punjab. बेटा यू कैन सी दिस इमेज, इससे आपको क्लियर होगा कि गजनी जो था उसका एरिया क्या था. दिस रेड पोर्शन, इधर से ये लोग आए थे हमारी कंट्री में एंड दे इन्वेडेड आवर कंट्री. सी दिस इमेज, इट विल क्लियर ऑल. मोहम्मद गौरी जब गजनी से हमारे देश की तरफ आया तो उच्च, लाहौर, मुल्तान, काबुल, पेशावर, इन सब एरिया को जीतते हुए ये यहाँ दिल्ली तक आया और यहाँ पर ये अपने एक स्लेव यानी गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको ये छोड़कर कह के जाता है कि आगे की डायनेस्टी को वो उसके बिहाफ पर आगे बढ़ाए. तो इस तरह से इन 1206 में स्टार्ट होती है स्लेव डायनेस्टी, जो कि सल्तनत पीरियड की स्टार्टिंग थी, मुस्लिम एरा की स्टार्टिंग थी हमारे देश में. द बैटल ऑफ तराइन. स्टूडेंट्स, तराइन का जो बैटल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंस रखता है हमारी हिस्ट्री में बिकॉज आफ्टर दिस बैटल मुस्लिम डायनेस्टी जो है वो प्रॉपरली हमारे देश में स्टार्ट हुई. इन 1191 the armies of Muhammad Ghori and Prithviraj Chauhan clashed at Tarain. तो तराइन के कितने बैटल हुए? तराइन के टोटल 2 battles हुए. First battle of Tarain was fought in 1191 between Ghorid against the Chahmans and their alliance near Tarain, and the second battle of Tarain was fought in 1192 by the Ghoris against the Chahman and their alliance near Tarain. तो जो second battle था इसमें मोहम्मद गौरी जो है वो जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाता है. सी दिस इमेज ऑफ, यू कैन सी इन दिस बैटल जो है मोहम्मद गौरी जो था फर्स्ट बैटल में बहुत बुरी तरह से घायल हुआ था, बट सेकेंड बैटल में मोहम्मद गौरी फिर से अटैक करता है पृथ्वीराज चौहान पे. दिस इज द इमेज ऑफ पृथ्वीराज चौहान एंड सेकेंड बैटल में ये पृथ्वीराज चौहान को हराने में कामयाब होता है. एंड इस तरह से जो ये जो राजपूत का जो एरिया था उसको भी
ये जीत लेता है। So students, as you know it very well कि we are studying about the medieval India, कि medieval India में सल्तनत पीरियड से पहले का हमारा एम्पायर इंडिया का कैसा था। तो आपने देखा कि किस तरह से मुस्लिम्स का आना हमारी कंट्री में स्टार्ट हो चुका था। ट्रेडिंग के बाद धीरे धीरे किस तरह से सल्तनत पे उनका हाथ आ चुका था, ये आप लोगों ने अभी तक के स्लाइड्स में देखा। बट दैट वॉज द कंडीशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ओनली। नाउ व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ साउदर्न इंडिया? एज यू कैन सी दिस स्लाइड, द चोला एम्पायर के बारे में हम बात करेंगे। तो साउथ इंडिया में जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट और सबसे ज्यादा पावरफुल एम्पायर थी, दैट वाज द चोला एम्पायर इन दैट टाइम पीरियड। जिस समय नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम्स आ चुके थे हमारी कंट्री में राज करने के लिए, उस टाइम पीरियड में साउथ इंडिया में चोला एम्पायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही थी। यू कैन सी द येलो पार्ट इन दिस मैप। आप देख सकते हैं कि इंडिया से बाहर सुमात्रा तक और बहुत दूर तक चोला एम्पायर का राज था। एक बहुत बड़ा कोस्टल एरिया था चोला एम्पायर के पास। तो दैट इज वाई इनके जो एरियाज थे ट्रेडिंग के, वो पूरी तरह से खुले हुए थे। चोलास स्टेबलाइज्ड अ पावरफुल एम्पायर इन द साउथ इंडिया। दैट इज वाई दे आर नोन एज द इंपीरियल चोलास, एंड दे रूल्ड इन साउथ इंडिया फॉर नियरली 4 सेंचुरीज। लगभग 4 सेंचुरीज तक उन्होंने यहाँ राज किया। तंजौर, जो अभी तंजावुर कहलाता है, वॉज देयर कैपिटल। Vijayalaya जो था, he was the founder of Chola Empire and he took over the Tanjore kingdom in 8th century and led the rise of mighty Chola by defeating the Pallavas। तो पल्लवास को हराने के बाद चोलास जो थे वो और भी ज्यादा पावरफुल बन गए। जो इंपॉर्टेंट किंग्स थे who were राजेंद्र चोला and Rajendra Chola first were the greatest ruler of the Chola dynasty. See this image of Rajendra Chola. He was the most successful personality of Chola Empire. His army defeated the Cheras, the Chalukyas, these all till West Bengal तक तो वो पहुंच चुके थे, where they defeated Palas also। पालास जिन्होंने 300 सालों तक बंगाल पे राज किया, उन्हें तक चोलास ने हरा दिया था। आफ्टर द विक्ट्री, यहाँ बंगाल पे विक्ट्री होने के बाद राजेंद्र चोला कॉल्ड हिमसेल्फ गंगई कोंडा चोला। गंगई कोंडा चोला एंड विच मीन्स वन हु हैड कॉन्क्योर्ड प्लेस अप टू रिवर गंगा। जिसने रिवर गंगा तक के सारे एरियाज को जीत रखा हो, उसने अपने आप को ये नाम दिया। एंड तंजौर को उसने गंगई कोंडा चोलापुरम बुलाया। तंजौर को गंगई कोंडा चोलापुरम बुलाने का कारण ये था कि कभी कभी वो गंगा से जल लेके, यहाँ का गंगा का जो पानी होता था उसको लेके तंजौर में एक उसने छोटी सी लेक बनवाई थी, उसमें भी डाला करता था। दैट इज वाई इस एरिया का नाम गंगई कोंडा चोलापुरम भी पड़ा। राजेंद्र चोला मोस्ट डेयरिंग कैंपिंग वो साउथ ईस्ट एशिया, जो उसने साउथ ईस्ट एशिया के सारे पार्ट्स को जीता था, दैट इज द मोस्ट डेयरिंग वर्क। एंड नेक्स्ट वन अबाउट द चोला एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्किटेक्चर। एज यू कैन सी दिस इमेज स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट चोला एडमिनिस्ट्रेशन। तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, दिस एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड मंडलम, looked after by governors, जो कि गवर्नर के थ्रू देखी जाती थी। Each mandalam was further divided into numerous valanadus and each valanadu was considered of a number of villages which is called nadu or khurram, and it was the lowest unit and there were also many towns or nagaram, जिसको नगरम बोला जाता था, such as तंजौर, कांची एंड पुहार। स्टूडेंट्स, विलेज असेंबली भी चलती थी जिसमें उर और सभा का बहुत ज्यादा महत्व है, जो कि स्टार्टिंग से चोला एम्पायर के टाइम पीरियड से चलती थी। चोला एडमिनिस्ट्रेशन जो कि मैंने अभी आपको बताया पूरा, that was about the kingdom headed by king, that is mandalam, looked by the governor, valanadus which is looked after rich landlords, and nadus or kuram which is looked by an assembly of villagers। चोला एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पीरियड पे आर्ट और कल्चर का बहुत बड़ा प्लेस था। बहुत ज्यादा वर्क किया है इन्होंने आर्किटेक्चर के फील्ड में, बहुत ज्यादा स्कल्पचर के फील्ड में इन्होंने वर्क किया, लैंग्वेज एंड लिटरेचर के फील्ड में वर्क किया। यू कैन सी दीज इमेजेस, बहुत सारे टेम्पल्स इन्होंने बनाए विच आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। दिस इमेज इज द एग्जाम्पल ऑफ बृहदेश्वरा टेम्पल, जो कि चोला एम्पायर के टाइम पीरियड पे बनवाया गया था, विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वी कैन से इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर।
So students, I hope this video will be useful for you. Thank you.